Hello everyone, welcome back to my channel Studying English with Seema Saini. I'm Seema Saini. I hope you all are good. Our today's topic is Subject verb agreement. It's also called subject verb concord. So stay with us till then. Let's start. So what is subject verb concord? The use of verb must be according the subject. Means verb का use according subject होना चाहिए. That is subject verb agreement. Means subject का verb के साथ agreement होना चाहिए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इज, एम, वॉज, हैज, डज, एक्सेट्रा, दीज आर सिंगुलर वर्ब्स. डू, आर, वर, हैव, एक्सेट्रा, दीज आर प्लूरल वर्ब्स. So let's take some example. Singular subject, singular verb. Example: this child is very clever. So here subject this child is singular. So we will use singular verb here. This child is very clever. So is singular verb here. We cannot write this child are very clever. This is wrong. Okay, so are is the plural verb. That book was interesting. So that book, this is singular subject. So we cannot use here verb with that book. So here we will use singular verb. That is was. That book was interesting. This is correct. He has many storybooks. We cannot write he have many storybooks. Have is the plural verb. So he is the singular subject here. So we will use singular verb. He does not work. We cannot write he do not work. So does is the singular verb here. Let's understand examples of plural subject, plural verb. Example 1. The children are very clever. So here subject is plural. The children. This is plural subject. So with this we will use plural verb. So are is the plural verb here. We cannot write the children is very clever. So is singular verb. So we cannot use here is. So we will use here are. The children are very clever. This is correct sentence. Those books were interesting. So those books. This is plural subject. So with this we will use plural verb. So plural verb is were here. We cannot write here those books was interesting. This is wrong. We will write those books were interesting. Third example, they have many storybooks. So they is the plural subject here. So we will use plural verb have. So have is the plural verb. So we will use here they have many storybooks. We cannot write they has many storybooks. Next example is they do not work regularly. So they is the plural subject here. Do is the plural verb. We cannot write here does. They does not work regularly. This is wrong sentence. We will use they do not work regularly. In this topic, there are only two rules. SS, PP. SS means singular subject, singular verb. PP means plural subject, plural verb. यूज SES टू मेक प्लूरल. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लूरल बनाने के लिए नाउन में SES का यूज होता है. जैसे बुक, बुक्स, गर्ल, गर्ल्स, मैंगो, मैंगोज. मैंगोज में ES लगाने से मैंगोज हो जाता है. बेंच, बेंचेस. बेंचेस में ES लगाने से प्लूरल हो जाता है. मीन्स नाउन प्लस SES प्लूरल. इफ वी यूज SES विद वर्ब देन इट इज सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, गो के साथ अगर हम ES का यूज करेंगे तो गोज बन जाता है और गो प्लूरल, गोज सिंगुलर. ईट, ईट के साथ अगर हम S का यूज करेंगे तो ईट्स बन जाएगा. ईट, ईट्स. ईट प्लूरल, ईट्स सिंगुलर. मीन्स अगर हम नाउन में SES का यूज करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है और वर्ब में अगर हम S और ES का यूज करते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है. मीन्स सिंगुलर हो जाता है. For example, they go, they plural subject and go plural verb. He goes, he singular subject and goes singular verb. Remember, if we use SES with the noun then it is plural.
If we use ses with the verb, then it is singular. For example, book plus s, books. This is plural. Go is verb here. Go plus es, goes. This is singular. Go plural, goes singular. I eat mangoes. You eat mangoes. He eats mangoes. तो eat plural verb है, eats singular verb है. अब आपको लग रहा होगा कि I और you तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ क्यों हुआ. तो I और you एक्सेप्शनल केस है. रूल्स: इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, यूज सिंगुलर वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज I, we, you, they प्लस प्लूरल नाउन, यूज प्लूरल वर्ब. रिमेंबर, use plural verbs with you. Remember, use verbs with pronoun I, are, am, was, have. I के साथ जो verbs use होती हैं वो है am. I के साथ am का use होता है. Singular verb was का use होता है और have का use होता है. So have plural verb है. Use verbs with pronoun you, are. You के साथ जो verbs use होती हैं वो है are, were, have. मीन्स you के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब्स का यूज होता है. तो प्रोनाउन I और you एक्सेप्शनल है. एग्जाम्पल, आई एम एंग्री विद यू. यहाँ पे I के साथ am का यूज हुआ है. आई वॉज एंग्री विद हिम. यहाँ पे was का यूज हुआ है. was सिंगुलर वर्ब है. आई हैव अ गुड इंग्लिश डिक्शनरी. यहाँ पे हैव का यूज हुआ है I के साथ. हैव प्लूरल वर्ब है. यू आर लेट फॉर स्कूल. यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है आर. यू वर लेट फॉर स्कूल. तो यहाँ पे यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है. यू हैव अ गुड हाउस. यहाँ पे भी यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है हैव. तो विद आई यूज वर्ब्स एम, was, have. With you use verbs are, were, have. Means pronoun you के साथ हमेशा ही plural verb का यूज होगा. If two subjects are joined by and, use plural verb. अगर two subjects and के साथ join हो रहा है तो आपको plural verb का यूज करना है. Example, gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पे टू सब्जेक्ट हैं जो एंड के साथ ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. देन वी विल राइट गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स. फायर एंड वाटर. सो फायर एंड वाटर यहाँ पे टू सब्जेक्ट हैं. फायर, वाटर, ये टू सब्जेक्ट हैं और एंड के साथ ज्वाइन है, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. तो वी विल राइट फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री. So do plural verb है. Next, are your father and mother at home. तो your father and mother यहाँ पे टू सब्जेक्ट हैं और and के साथ कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. प्लूरल वर्ब are. He and I were playing. तो he and I यहाँ पे टू सब्जेक्ट हैं और and के साथ कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज वर. ही एंड आई वर प्लेइंग. तो रिमेंबर, अगर टू सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट एंड के साथ कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. इफ द टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ होल, यूज अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म. मीन्स अगर टू सब्जेक्ट एंड के साथ ज्वाइन हो रहे हैं और वो सेम थिंग को या फिर सेम पर्सन को रिफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर. द हॉर्स एंड कैरेज ये दोनों ही सेम थिंग को रिफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है इज. मीन्स द हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर. नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर. तो यहाँ पे भी ब्रेड एंड बटर टू सब्जेक्ट हैं और एंड के साथ ज्वाइन है, लेकिन ब्रेड और बटर एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. लाइक ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड. तो यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब है. थर्ड सेंटेंस,
ऑनर एंड ग्लोरी। तो ऑनर एंड ग्लोरी भी यहाँ पे सेम थिंग को, सेम पर्सन को रिफर कर रही हैं, तो यहाँ पे भी हम इज का यूज करेंगे। सो ऑनर एंड ग्लोरी टू सब्जेक्ट और एंड से ज्वाइन है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे, लाइक ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड। यहाँ पे द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट ये सेम पर्सन के लिए यूज हुए हैं और टू सब्जेक्ट है, द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, और ये एंड के साथ ज्वाइन है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और वो सिंगुलर वर्ब है इज। द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड। इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड आर ज्वाइंड बाय द वर्ड्स और, नॉर, ईदर, और, नीदर, नॉट, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, यूज अ सिंगुलर वर्ब। मीन्स अगर दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और वो ज्वाइन है इस तरह के वर्ड से, मीन्स और, नॉर, ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ईदर अमित और अमन इज कमिंग। तो यहाँ पे ईदर और वर्ड का यूज हुआ है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज। ईदर अमित और अमन इज कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मॉम और डैड। तो माई मॉम और डैड यहाँ पे टू सब्जेक्ट्स हैं और दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और के साथ कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज। लाइक माई मॉम और डैड इज विजिटिंग यू टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर। सो यहाँ पे फूड एंड वाटर टू सब्जेक्ट हैं और दोनों ही नीदर और नॉर से कनेक्टेड हैं और सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लाइक नीदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम। सो प्रेज और ब्लेम, दीज आर two subjects here and both are singular, are connected with neither nor, so we will use here singular verb, like neither praise nor blame seems to affect him. If the subjects are both plural, अगर दोनों ही subject plural है और वो join है in word से, like or, nor, either, or, neither, nor, or, not only but also use plural verb, तब भी आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। बस आपको सब्जेक्ट देखना है कि प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे जिन वर्ड्स के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट कनेक्टेड है वो है नॉट ओनली, और जो सब्जेक्ट है दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, लाइक बर्गर्स एंड पिज्जाज। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर। Not only burgers but also pizzas are available at cafe. Second sentence, neither the chairman nor the directors are present. तो यहाँ पे neither word का यूज हुआ, neither nor, और जो subjects हैं वो plural है, तो subject क्या है यहाँ पे, chairman और directors। तो ये plural subject है, तो यहाँ पे हम plural verb का यूज करेंगे, like neither the chairman nor the directors are present। तो यहाँ पे verb are का यूज हुआ है, verb are is plural verb। If one of the subjects is plural, अगर दोनों subjects में से एक subject plural है तो जो nearest subject है उसी के अकॉर्डिंग हम verb का यूज करेंगे। अगर nearest subject plural है तो हम plural verb का यूज करेंगे, अगर nearest subject singular है तो हम singular verb का यूज करेंगे, और वो connected है इन words के साथ, like neither, nor, either, or, then use plural verb and plural subject should be near the verb. Example, neither the chairman not the directors। तो डायरेक्टर्स दोनों सब्जेक्ट में से एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, लाइक नीदर द चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। सो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। सेकेंड सेंटेंस, ईदर मॉम और माई सिस्टर्स। तो दोनों सब्जेक्ट्स में से जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, लाइक माई सिस्टर्स। तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लाइक ईदर मॉम
और माई सिस्टर्स आर गोइंग टू शॉपिंग। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर माई सिस्टर्स और मॉम। यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है मॉम, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पे करना है। लाइक ईदर माई सिस्टर्स और मॉम is going to shopping. If the subject is an uncountable noun, use a singular verb. अगर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तब सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब इज। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। तो मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, तो मनी के साथ भी सिंगुलर वर्ब डज का यूज करना है। रिमेंबर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। मिड सेंटेंस वर्ड्स। तो मिड सेंटेंस वर्ड्स क्या होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। इफ अ प्रपोजिशनल फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर प्रपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज माइजर। So one is subject here. Of my relative, this is prepositional phrase. Subject is one here, this is singular, and we will use singular verb is. So we will use here, one of my relatives is miser. Example second, one of my friends is coming. So of my friends, this is prepositional phrase. So subject is one here. So this is singular subject, then we will use verb is. This is singular verb. Example 3, the colors of the rainbow are beautiful. So of the rainbow, this is prepositional phrase. So subject is the colors. So subject is plural here, then we will use plural verb are. The colors of the rainbow are beautiful. So we are using here plural verb. Indefinite pronouns. An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing, or amount. Indefinite pronouns are anybody, anyone, anything, each, all, another, everybody, everyone, everything, many, few, nobody, one, several, some, somebody, someone. Singular indefinite pronoun takes singular verb. For example, everyone has finished their work. So here, everyone is singular pronoun. So we will use here singular verb, that is has. Next sentence, each gets a prize for participating. So each is singular pronoun here, then we will use singular verb, that is gets. Example third, somebody is coming to meet you. So somebody is singular pronoun here, then we will use here singular verb, that is. Next example, anybody was not there. So anybody is singular pronoun here, then we will use singular verb, that is was. Next example, something is missing here. So something is singular pronoun, so we will use singular verb, that is. So all the subjects are singular, so use singular verbs. In the above sentences, has, gets, is, was, are singular verbs. Plural indefinite pronouns take plural verbs. For example, both are qualified for the job. So here, both is the plural indefinite pronoun. So we will use here plural verb, that is are. Next example, many have gone to the park. So many is the plural indefinite pronoun. So we will use here plural verb, that is have. Next example, few know about this secret. So few is plural indefinite pronoun. So we will use here plural verb, that is know. Fourth example,
Several are already there. So several is plural indefinite pronoun. So we will use a plural verb, that is are. So pronouns both, many, few, several are plural indefinite pronouns. So use plural verbs are, have, know, etc. Some indefinite pronouns take a singular verb when referring to an uncountable subject, and some take a plural verb when referring to a countable subject. Some indefinite pronoun जब वो रेफर करते हैं अनकाउंटेबल सब्जेक्ट को तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और सम इंडेफिनिट प्रोनाउन जब वो काउंटेबल सब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1, ऑल इज वेल मीन्स सब ठीक है. तो यहाँ पे ऑल का यूज अनकाउंटेबल सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मीन्स इज का यूज करेंगे, ऑल इज वेल. एग्जाम्पल 2, ऑल हैव अराइव्ड मीन्स सभी आ गए. तो यहाँ पर ऑल पर्सन को रिफर किया गया है. सो पर्सन काउंटेबल होते हैं और काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है. देन वी विल यूज हियर प्लूरल वर्ब हैव. ऑल हैव अराइव्ड. हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है. एग्जाम्पल 3, हियर इज सम वाटर. और यहाँ पे जो वाटर है वो सब्जेक्ट है और इंडेफिनिट प्रोनाउन सम है. ये अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लाइक हियर इज सम वाटर. सो इज सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट, हियर आर सम बिस्किट्स. सो बिस्किट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है और सम इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कनेक्टेड है. तो सम यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है और बिस्किट काउंटेबल सब्जेक्ट है. तो काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है. देन वी विल राइट हियर आर सम बिस्किट्स. Inverted subject. So what is inverted subject? Let's understand. In question, the subject comes after the verb. Means interrogative sentences में सबसे पहले question words आते हैं, फिर verb आती है, फिर subject आता है. और subject के ऊपर depend करता है, अगर subject singular है तो singular verb आएगी, और अगर subject plural है तो plural verb आएगी. Let's take some example. How is your business? तो योर बिजनेस यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लाइक हाउ इज योर बिजनेस. एग्जाम्पल 2, व्हाट डज योर फादर डू. तो यहाँ पे योर फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लाइक व्हाट डज योर फादर डू. तो डज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, डू प्लूरल वर्ब है और डज सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट, वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल. तो यहाँ पे ऑफ दिस पजल ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को चेक करेंगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द पीसेस. द पीसेस ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, लाइक वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल. If the sentence starts with there or here, the subject will always be placed after the verb. अगर सेंटेंस there और here से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट हमेशा verb के बाद आता है. मीन्स there और here के बाद verb आती है, फिर सब्जेक्ट आता है. The words there and here are never subject. और सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो there और here वर्ड्स आते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं. Let's understand with the help of example. There is a problem with the remote. So first of all, here is there, then verb, then subject. What is subject here? A problem. So a problem ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. There is a problem with the remote. Next sentence, here are the books you asked for. So पहले here है, फिर verb है, उसके बाद subject है. So what is subject here? The books. The books is plural here. So plural अगर subject है तो उसके साथ plural verb भी आएगी. So here are the books you asked for. Collective nouns. Collective nouns can be singular और plural depending on the meaning. Collective nouns singular भी हो सकते हैं और plural भी हो सकते हैं, ये meaning पे depend करता है. जैसे कि कमिटी,
ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी, ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, कलेक्टिव नाउन। मेजॉरिटी, कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन्स एक सिंगल यूनिट की तरह यूज होते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर अलग अलग पर्सन के लिए यूज होते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द कमिटी मीट्स हियर एवरी थर्सडे। सो हियर द कमिटी एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज मीट्स। द कमिटी मीट्स हियर एवरी थर्सडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड समथिंग। तो द ज्यूरी यहाँ पे सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है, देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड समथिंग। नेक्स्ट, द क्राउड इज इंक्रीजिंग। द क्राउड भी यहाँ पे सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है, देन वी विल यूज हियर सिंगुलर वर्ब। द क्राउड इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेजॉरिटी का यूज भी यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, देन वी विल यूज हियर सिंगुलर वर्ब, that is rules, like the majority rules most of the time. If collective noun is used as individual members within a single unit, use a plural verb. अगर collective noun इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह एक सिंगल यूनिट में यूज हो रही है तब प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। द स्टाफ डिसअग्री ऑन द प्रपोजल। तो यहाँ पे द स्टाफ मेंबर्स के लिए यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज डिसअग्री। द स्टाफ डिसअग्री ऑन द प्रपोजल। नेक्स्ट, द पीपल इन द ऑडियंस। द पीपल इन द ऑडियंस मीन्स बहुत सारे पर्सन का यूज हो रहा है, देन वी विल यूज हियर प्लूरल वर्ब, लाइक द पीपल इन द ऑडियंस वर क्लैपिंग। If gerunds or infinitives are used as the subject, use singular verb. अगर gerund और infinitives को as a subject use करते हैं तो singular verb का use होता है। However, when they are joined by and, अगर इनको and से join करते हैं तो plural verb का use होता है। Let's take some example. Example 1, reading is a great skill. तो reading gerund है और सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रीडिंग इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। रीडिंग इज अ ग्रेट स्किल। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग। अब रीडिंग एंड राइटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और टू जेरेंट का यूज हुआ है, देन रीडिंग एंड राइटिंग, देन वी विल यूज हियर प्लूरल वर्ब, लाइक प्लूरल वर्ब क्या है यहाँ पे? आर। रीडिंग एंड राइटिंग आर ग्रेट स्किल्स। अब हम इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3, टू स्विम। टू स्विम क्या है? इन्फिनेटिव। टू स्विम इज अ ग्रेट वर्कआउट। टू स्विम क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी विल यूज हियर सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, टू स्विम एंड टू रन आर ग्रेट वर्कआउट्स। टू स्विम एंड टू रन, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज हुए हैं, then we will use a plural verb, that is are, means to swim and to run, two infinitive का use यहाँ पे हुआ है, then we will write plural verb are great workouts. That's all for today. For more videos, please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching, देखते रहिए और सीखते रहिए। Till then, bye. Take care.